तो आज हम लोग मार्शल मैकलुहान व्यू ऑन मीडिया एंड कम्युनिकेशन को देखने वाले हैं। और लेट मी टेल यू पीपल वेरी क्लियरली एंड फ्रैंकली दैट मार्शल मैकलुहान मीडिया के क्षेत्र में काफ़ी नामी गिरामी हैं। ये जो ग्लोबलाइजेशन है, कई ऐसे टर्म इन्होंने दिए मीडिया को और कम्युनिकेशन को जो बाद में वर्ल्ड फेम बना या पूरे विश्व में ये टर्म जो है वो फेमस हुआ। ग्लोबल विलेज जो इन्हीं का दिया हुआ टर्म है, प्लस मीडिया इज द मैसेज इटसेल्फ, मीडियम इज द मैसेज इटसेल्फ इन्हीं का दिया हुआ है। तो मीडिया और कम्युनिकेशन को जितना कंट्रीब्यूशन मार्शल मैकलुहान ने दिया है, शायद ही को इतना दिया है। और जिस पॉपुलरिटी और लार्ज स्केल पर इनका दिया हुआ जो थ्योरीज है या जो इनके कथन है वो बहुत पॉपुलर हुए। Due to this particular reason, he is one of the most prominent figure of media and communication. और इंटरनेट की पूरी जो अवधारणा थी थियोरेटिकल फॉर्म में कि एक दिन ऐसा आएगा कि पूरा वर्ल्ड जो है विलेज हो जाएगा, उसमें इंटरनेट का बहुत बड़ा या टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा रोल रहेगा, इन्होंने कहा था। तो इनकी भविष्यवाणी कई सारे मीडिया के लिए इतने सटीक और सही हुए कि ही इज़ ए फादर फिगर ऑफ मीडिया एंड कम्युनिकेशन। तो बहुत रिगार्ड है इनका, बहुत नाम है और बहुत सम्मान है, इसलिए इन पे काफ़ी रिसर्चेस भी हुए हैं, काफ़ी सारे इन पे बातचीत भी हुई है और काफ़ी इनसे जुड़े हुए कई सारे थ्योरीज भी बहुत सारे हैं। सो टुडे वी आर गोइंग टू सी दैट व्हाट ही particularly says about the media and communication, what he was holding the view regarding media and communication, and in the next presentation we will see that what are the critics of this, all the things that he has said in this in the field of media and communication. So let us start the topic. The first thing he used to say was that media as an extension of man. He was the first theoretist who says that the media is nothing but an extension of man. जो मीडिया है वह आधुनिक जो मीडिया है वह कुछ और नहीं, मनुष्य का ही एक्सटेंशन है, उसके आँख का, कान का, उसके इंद्रियों का एक्सटेंशन है। मैकलुहान viewed media as any extension of ourselves and the result of effort to relieve life stress and burden. और मीडिया का निर्माण इसलिए हुआ है कि लाइफ की जो स्ट्रेस है, तनाव है या बर्डन जो लाइफ पे बोझ होती है, उससे कैसे निजात मिले, है ना। इस परिणाम को प्राप्त करने के लिए ही, ताकि लाइफ में तनाव और दुखद जो स्थिति है उससे निकला जाए, मीडिया का निर्माण हुआ है। इट मीन्स दैट वंस योर eyes and ears get extension, then he can reach to that place where some enjoyment is there, where some entertainment is there. What does it mean? It is meaning that if you are facing some stress and burden in your family life, in your office life, then you can switch on the media, switch on your television, switch on your any of the internet site, and you can reach to the places, you can see the film, you can see the location, you can tour, you can surf to a places from where you can get some of the relieving points, some of the relieving visions, and ultimately that will release the stress and burden. So ultimately media is nothing but the extension of the human body. So McLuhan applies his view of technology as bodily amputation to several media. Thus, the phone extend our voice, television extend our eyes and ear, the computer extend our brain, and electronic media in general extend our central nervous system. Again, the things which I have told you is being written in this line, that television give extension to our eyes and ears. It means that our level of the vision increases with the help of television. Our level of the hearing capacity increases with the help of television. With the help of radio, we are capable to listen, we are capable to see the visuals of Pakistan sitting in the India. We are capable to see the bombardment, capable to see the missile attack on the Ukraine sitting in the India, how the Russians are attacking the Ukraine. So ultimately it is the extension of eyes and ear of a viewer. Media. Again, the computer extend our brain,
और कंप्यूटर क्या करता है, हमारे दिमाग की जो क्षमता है उसको बढ़ा देता है। हमारे दिमाग की जो गणना की क्षमता है, हमारे दिमाग की जो याद करने की क्षमता है, हमारे दिमाग की जो लिखने की क्षमता है, उन सारी क्षमताओं को काफी हद तक बहुत दूर तक बढ़ा देता है। और कंप्यूटर इज नथिंग बट एक्सटेंशन ऑफ द मीडिया एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इन जनरल एक्सटेंड आवर सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या होता है, हम लोग हंसते हैं, हम लोग रोते हैं, हम लोग चीखते हैं, चिल्लाते हैं, ये सारे जो सेंसरी है, ये जो सारा सेंसेशन हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट है। और वंस you start seeing the television channel, automatically it happens that sometime we smile, sometime we get tensionized, sometime we get some of the lighter things, sometime we get some of the things which has some other level of the feeling. मान लीजिए आप न्यूज़ देख रहे हैं, अचानक आप देखते हैं पेट्रोल की कीमत 10 रुपये बढ़ चुकी है। अब आपको गुस्सा आएगा, आपको टेंशन आ सकता है। तो आपके नर्वस सिस्टम में जितनी ज़्यादा फीलिंग है, डाटा फीड है, वो सारे को मीडिया निकालता है। तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का वो काम है। तो दिस इज अकॉर्डिंग टू द मार्शल मैकलुहान, दिस इज द एक्सटेंशन ऑफ द मैन, दिस इज द एक्सटेंशन ऑफ मीडिया थ्रू द बॉडी ऑफ माइंड। Now, moving to the next slide, that is critique of Marshall McLuhan view on media and communication. To make his case, McLuhan distinguished between hot media that historically triggered a global explosion, individualism and fragmentation in the society, and the cool media. The first one theory you were reading about, the extension of the media, and the second theory is that the McLuhan distinguishes between hot and cold media. According to him, two categories of media is there. The one is hot media and other is cold media. गर्म और ठंडा मीडिया जो मैकलुहान साहब मानते हैं। और उनके अनुसार जो हॉट मीडिया है वो क्या करता है, व्यक्तिवाद को बढ़ाता है, इंडिविजुअलिज्म, आदमी इकाई हो जाता है, व्यक्तिवादी हो जाता है, खुद में सीमित हो जाता है और ऐसे समाज का निर्माण करता है हॉट मीडिया जो फ्रैगमेंटेड होता है, टुकड़ों टुकड़ों का समाज होता है। जब समाज व्यक्ति के स्तर पर बढ़ जाएगा तो समाज का विखंडन हो जाएगा, समाज अलग अलग धड़ों में बढ़ जाएगा। तो हॉट मीडिया क्या करता है, समाज को बांटता है, तोड़ता है, टुकड़े टुकड़े में करता है और हर व्यक्ति को इकाई बना देता है। और कूल मीडिया क्या करता है, अकॉर्डिंग टू मैकलुहान, बाद में आप लोग क्रिटिक में देखेंगे कि यहाँ पे कुछ और भी चीजें। कूल मीडिया दैट आर बिहाइंड द करंट इम्पोलिजन, जो जोड़ता है, वर्ल्ड वाइड इंटीग्रेशन, जो कि जोड़ता है समाज को, व्यक्ति से व्यक्ति को जोड़ता है, समाज से समाज को जोड़ता है। दिस आर ऑल द फॉर्म ऑफ कूल मीडिया इनटू ए ग्लोबल विलेज। फॉर मैकलुहान, ए हॉट मीडियम इज वन that extend one single sense in high definition। एक ही जो सिंगल सेंस है, या तो आंख है, कान है या ब्रेन है, उसको हाई डिफिनेशन यानी बहुत ऊंचाई तक लेके जाता है, बहुत ज्यादा उसको वाइब्रेशन वगैरह देता है, फीलिंग्स देता है और वो बहुत ऊंचाई तक पहुंचता है। तो हॉट मीडियम वेयर हाई डिफिनेशन इज द स्टेट ऑफ बीइंग वेल फिल्ड विथ डाटा। और हाई एक्सटेंशन क्या है, हाई डिफिनेशन क्या है कि इतनी ऊंचाई तक आप जाते हैं कि यू आर फिल्ड विद द डाटा। If you are involving your eyes, then your eyes will fill with the visuals, fill with the data, fill with the graphics, fill with the animation, fill with the pictures. And if your ears are engaged in the hot medium, then it will fill with the data related to the sounds. Different sounds you will listen. Some singing sound, some dancing sound, some knocking sound, some vehicle sound, some traffic sound, some other type of sounds. And if your brain is involved, then again it will also be engaged with the data. Hot media include radio, print, photograph and movie. So these are the hot media where one sense is engaged, which in McLuhan view emit so much data that they limit sensual involvement and are therefore low in participation. And this form of the media are so involving. So involving means the person once goes or start using this media, they are involved with the media. They are immersed in the media, and the involvement is up to that level
that even the person forget that they are involved with that media. They get the sensual pleasure and therefore they forget to participate in the media. The feedback is minimum at this level of the media, in the hot media. While listening radio, print, going through the newspaper or going through the photographs of the movie, the person forget themselves. They start enjoying with the content, enjoying with the data, and they even forget of their involvement. So the people participation while utilizing the hot media is very minimum or is a very lowest one. Whereas in the cool media such as telephone, speech, cartoon, television invite sensual engagement because they produce less high definition data and are consequently high in participation. So again, in the low media, cool media also, the people involvement is there, but they are not such level of the high sensual engagement. Comparatively to the hot media, they are of low level of sensual engagement. That's the reason that people are not there to see or receive the data, but they start participating in that communication also. This is the difference between hot and cold media. हॉट मीडिया को जब आदमी यूज करता है वह खुद को भूल जाता है और वह जो है उस संचार में प्रतिपुष्टि नहीं देता है या फीडबैक नहीं देता है। जबकि जब कोल्ड मीडिया यूज करता है तो वह भी पार्टिसिपेटरी या वह भी भागीदार होता है। जैसे टेलीफोन है, टेलीफोन पर आप बातचीत करेंगे तो आपको भी आवाज लगाना होगा, आप भी बात करेंगे तभी आवाज जा पाएगी। उसी तरह से जब आप कार्टून भी देखते हैं तो भी उसका वह लेवल नहीं होता है कि आप इन्वॉल्व होते हैं। इसमें थोड़ा सा भावनाएं कम होती है या उछाल कम आता है आपके फीलिंग्स में, इसीलिए आप वह देखते देखते आप कुछ खा पी लेते हैं, एंजॉय भी कर लेते हैं और भी काम करते हैं। इवन टेलीविज़न के बारे में भी इनकी धारणा है कि आप ये टेलीविज़न करते करते आप कुछ काम कर सकते हैं, यानी आपकी सेंसेस आपके पास रहेगी कि आप क्या कर रहे हैं। लेकिन जब आप मूवी वगैरह देखते हैं या फोटोग्राफ देखते हैं तो आप खो जाते हैं, ऐसा इनका मानना था। इनवाइट सेंसुअल एंगेजमेंट बिकॉज दे प्रोड्यूस लेस हाई डिफिनेशन डाटा, क्योंकि इनके द्वारा जो डाटा प्रोड्यूस होता है कार्टून वगैरह में या स्पीच वगैरह में या टेलीफोन वगैरह में, वो हाई डिफिनेशन का डाटा नहीं होता है कंपेरेटिव टू द हॉट मीडिया। हॉट मीडिया में बहुत हाई डिफिनेशन का होता है, बहुत ही इमर्सिंग होता है, बहुत ही इन्वॉल्विंग होता है, बहुत ही इंगेजिंग होता है, तो आदमी भूल जाता है। लेकिन यहाँ पे डाटा उस लेवल का नहीं होता है। कंपेरेटिवली टू द हॉट मीडिया दे प्रोड्यूस द लेस हाई डिफिनेशन डाटा एंड आर कंसिक्वेंटली हाई इन पार्टिसिपेशन। यही वजह है कि जो पार्टिसिपेशन का स्तर है वह ज़्यादा होता है कोल्ड मीडिया वाले। तो दिस इज अनदर कैटेगरी और दिस इज अनदर टाइप ऑफ थियोरिटिकल explanation or a category being established by the Marshall McLuhan in the field of media and communication. He differentiated between hot and cold media. He has given the two forms of the media, one is hot and another one is cold. In the hot media, the participation is of high level. The people while utilizing or using the hot media, they forget themselves, and that's the reason that they are not in the participatory role. Whereas while using the cold media, the level of the involvement is not up to the level of the hot media, and that's the reason that the involvement from the people side is comparatively higher one. So this is the one theory or one idea or one differentiation that was established by the Marshall McLuhan. Now moving to the next important thing, that is to make his cause. McLuhan distinguished between hot media that historically trigger a global explosion, individualism and fragmentation in society, and cool media that are being the current implosion, worldwide integration into global village. For McLuhan, a hot medium is one that extends one single sense in high definition, where the high definition is the state of being well filled with data. Hot media include radio, print, photograph and movie, which in McLuhan view emit so much data that they limit sensual involvement. So this is the same slide, same content,
and are therefore low in participation. The cold media such as telephone, speech, cartoon and television invite sensual engagement because they produce less high definition data and are consequently high in participation. Now the next important thing that is very famous from the McLuhan is the medium is the message. So this is very popular saying of the McLuhan that the medium itself is the message. Whenever some message is being broadcasted, is being written on any of the medium, जब अखबार में कोई खबर छपता है, टेलीविजन से कोई खबर दिखाया जाता है, रेडियो पे आप कुछ सुनते हैं, इंटरनेट पे कोई कुछ पढ़ता है, यह सब अपने आप में ही एक मैसेज है। यानी कि मीडियम जो है वह अपने आप में ही मैसेज देता है। द मैसेज इज गिवन बाय द मीडियम इटसेल्फ। Once you are utilizing or using any of the medium, then that particular medium is message in itself, and it is being established by the Marshall McLuhan that McLuhan also insists that the impact of technologies owns more to the effect of the media themselves than to the content of their message. यानी तकनीकी का जिस तरह से प्रभाव पड़ा है, इम्पैक्ट हुआ है समाज पर, देश पर, उसका ही प्रभाव ज्यादा लोगों पर है। Owns more to the effect of the media themselves than to the content of the message. मैसेज के कंटेंट से ज्यादा टेक्नोलॉजी का प्रभाव पड़ा है लोगों पर। यानी कि मीडियम जो अपने आप में ही वो मैसेज है, मैसेज को डिकोड करने की जरूरत है, मीडियम ही अपने आप में सब कुछ कर देता है। टू मेक दिस पॉइंट मैक्लुहान कॉइन्ड द इनएग्मेटिक फ्रेज द मीडियम इज द मैसेज because the real message of any medium or technology is the change of a scale or pace or pattern that it introduces into human affair. यानी कि मीडियम जो मैसेज इस तरह से है वो बताते हैं, he used to say that कि टेक्नोलॉजी, तकनीक, चेंज ऑफ स्केल, जिस तरह से तकनीक बदल जाता है किसी भी मीडियम से जुड़कर या किसी भी मीडियम के पीछे जो टेक्नोलॉजी है उसका जो प्रभाव है, उसकी जो गति है, पेस और पैटर्न, उसका जो गति है और उसकी जो दशा या दिशा है, इट इंट्रोड्यूस इनटू ह्यूमन अफेयर, और जिस तरह से वो मानव में घुस जाता है या अपने आप को व्यवहारिक बना लेता है, यही अपने आप में मैसेज बन जाता है। मैक्लुहान हेल्ड दैट व्हाट वी व्यू एज ए कंटेंट इज सिंपली अनदर मीडियम। उनका कहना है कि जिसको हम कंटेंट समझते हैं वो दूसरा मीडियम है और कुछ नहीं है। अखबार में जैसे हम न्यूज पढ़ते हैं, Thus the content of writing is a speech. आप अखबार में जो खबर पढ़ रहे हैं वो किसी के द्वारा बोला गया है। आप एक मीडियम थोड़ी पढ़ते हैं, आप मीडियम ही पढ़ते हैं। कोई माइक पे बोल रहा है, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल रहा है, कोई रोड पे कुछ बोल रहा है, उसी को लिख दिया जाता है। तो राइटिंग इज स्पीच। जो लिखा हुआ है अखबार में वो किसी का भाषण है, किसी के द्वारा बोला गया है। Just as the writing word is the content of the print and the print is the content of telegraph. और ये कहा गया है इनके द्वारा कि प्रिंट जो है वह टेलीग्राफ से निकला हुआ है, यानी आपका बोला हुआ जो है वह कहीं प्रिंट होता है। एंड सिमिलरली द कंटेंट ऑफ मूवी इज ए नॉवल, और मूवी में जो दिखाया जा रहा है वो किसी नॉवल में लिखा हुआ है। यानी एक मीडियम इलेक्ट्रॉनिक मीडियम है और दूसरा मीडियम जो है वो प्रिंट मीडियम है, नॉवल प्रिंट है। तो जो नॉवेल का कंटेंट है वो मूवी में दिखा रहा है, आपको लग रहा है कि आप मूवी का कंटेंट देख रहे हैं, लेकिन वो नॉवेल में लिखा हुआ है। यानी एक मीडियम दूसरे मीडियम है, तो अल्टीमेटली मीडियम ही सब कुछ है। और जो नॉवेल लिखा है वह हो सकता है लिखने वाले के दिमाग का, और ए प्ले और एन ओपेरा। When one medium is channelized through another in this way, its effect is intensified. और जब एक मीडियम जो है दूसरे मीडियम में दिखाया जाता है या उसको प्रस्तुति होती है तो उसकी प्रभावशीलता, उसकी क्षमता, उसकी रीच जो है वो बढ़ जाती है, उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ जाती है। ये इनके द्वारा कहा गया इंटेंसिफाइड बट ऑल्सो मेड इम्परसेप्टेबल, और मजबूत होकर वो और तेजी से फैलता है, बढ़ता है और उसकी जो व्यापकता है और बढ़ जाती है। सो इन रियलिटी, सो वस्तुगत होता क्या है? व्हाट इज इन रियलिटी? What we misperceive as the content of a medium is like a juice piece of meat carried by vulgar to distract the watchdog of the mind. एक कथन इन्होंने बनाया जिसे हम उस मीडियम या किसी कंटेंट समझते हैं कि ये टेलीविजन का है या फिल्म का है या नॉवेल का है या न्यूज़पेपर का है, असल में वो बरगलाने का काम करता है लोगों को। असल में वह दूसरे मीडियम का ही
किया धरा सब कुछ है। यानी एक मीडियम से दूसरे मीडियम, दूसरे से अलग मीडियम करते हैं। अब फिल्म को देखकर लोग क्रिटिक लिख देते हैं, आपको लगता है कि वो कंटेंट उसका, जबकि वो फिल्म का कंटेंट है। फिल्म को देखकर लोग कपड़े खरीदते हैं, लगता है कि फिल्म को कर दे, लेकिन उसका एक अलग ही दृष्टांत है। तो एक मीडियम दूसरा मीडियम, हम लोग कुछ और नहीं, बस मीडियम को ही कंज्यूम करते हैं। द मीडियम इज द मैसेज। इनका कहना है कि मीडियम अपने आप में ही मैसेज है, और कई बार मीडियम को देखकर मैसेज निकाला भी जाता है। अखबार को कौन पढ़ने वाले लोग हैं, वो मैसेज अपने आप में। टेलीविजन को देखने वाले कौन है, वो मैसेज है। किस फिल्म को कौन देख रहा है, वो मैसेज है। अखबार को जो पढ़ने वाला है वो साक्षर आदमी है, जागरूक आदमी, ये अपने आप में मैसेज है। रेडियो को सुनने वाला किसान भी हो सकता है, मजदूर भी हो सकता है, अपने आप में मैसेज है। पीपल मीडियम है। तो मीडियम अपने आप में ही मैसेज है, उसको डिकोड करने की जरूरत है, और मीडियम को देखकर आप बहुत सारे मैसेज को डिकोड कर सकते हैं। कोई अगर मान ली जाए स्टार डस्ट पढ़ रहा हो, या द ब्लीच पढ़ रहा हो, या फिल्म फेयर का मैगजीन पढ़ रहा हो, तो वो अपने आप में मैसेज है। कोई अगर क्रिकेट सम्राट पढ़ रहा है तो वो अपने आप में मैसेज है। किस तरह की उसकी पसंद है, किस आयु वर्ग से है, उसकी रुझान क्या है, उसकी शैक्षिक योग्यता क्या है। कोई अगर साइंस मैगजीन पढ़ रहा हो, कोई द अर्थ देख रहा हो, कोई डिस्कवरी नेट जियो देख रहा हो, कोई जी न्यूज देख रहा है, तो हर अपना मीडियम अपने आप में मैसेज। टेलीविजन इटसेल्फ इज द मीडियम एंड द चैनल इटसेल्फ इज अनदर मीडियम। तो इनका यह कहना था कि मीडियम इटसेल्फ इज द मैसेज, और बताने की जरूरत नहीं, बहुत समझाने की जरूरत नहीं, मीडियम अपने आप में ही मैसेज है। नाउ क्रिटिक ऑफ मार्शल मैकलुहान व्यू ऑन मीडिया एंड कम्युनिकेशन। तो 3 थ्योरी इन्होंने दिया। एक एक्सटेंशन ऑफ बॉडी एंड दिया कि मीडिया इज नथिंग बट एक्सटेंशन ऑफ आवर बॉडी। दूसरा हॉट और कोल्ड मीडिया के बारे में इन्होंने डिफरेंशिएट किया। तीसरा मीडियम इज द मैसेज। अब तीनों पर कुछ ना कुछ क्रिटिक्स है, यानी कि कुछ ना कुछ उसमें खामियां है। क्रिटिक्स थोड़ा सा हम बता देते हैं क्योंकि लेकिन इस पे विस्तार से हम नेक्स्ट प्रेजेंटेशन में बात करेंगे अच्छे से। So Marshall McLuhan affirmation that the medium is the message has also been held by some as perceptive and condemned by other as short-sighted। कुछ लोगों का कहना है कि मीडियम इज द मैसेज एक परसेप्शन है, यानी कि एक सोच है सिंपल, लेकिन ऐसा है नहीं। कंटेंट का भी अपना योगदान है, या मीडिया में कंटेंट भी मायने रखता है, कंटेंट भी कुछ होता है। और ये दूरदर्शिता नहीं है मैकलुहान साहब की, यह जो है वह निकट दृष्टि दोष है, यानी कि वह बहुत हल्के में चीज़ों को बता गए, या शॉर्ट साइटेडनेस है कि उन बहुत लंबे में वो चीज़ों को नहीं देख पाए, सिर्फ मीडियम को देख पाए। लेकिन मीडियम के लिए कितना कंटेंट लगाया, शब्दों को कैसे जोड़ा गया, उसमें ध्वनि मिलाया गया, इतना वर्क किया गया, वो उनको नहीं दिख रहा है। फॉर वन इट एनकरेज्ड रिसर्चर्स टू व्यू कंटेंट एंड मीडियम एज अ वन यूनिट इन म्यूचुअल इंटरेक्शन रेदर देन एज सेपरेट एंटिटीज। वह कंटेंट और मीडियम को इस तरह से देखते हैं कि एक ही यूनिट है, यानी कि मीडियम इज द मैसेज, यानी कि कंटेंट भी उसी में इनबिल्ट है, जबकि कंटेंट अलग होता है और मीडियम अलग होता है। एक अखबार पर स्पोर्ट्स के भी न्यूज आते हैं, पॉलिटिक्स भी आते हैं, रिलीजन भी आता है, तो कंटेंट अलग है और मीडियम अलग है। लेकिन मैकलुहान साहब के अनुसार कंटेंट और मीडियम जो है वह एक ही यूनिट है। तो ये इनकी बुराई है कि वह बहुत ही बारीकी से चीज़ों को नहीं देखते हैं, अलगाव में नहीं देखते हैं, जबकि दोनों की अपनी ट्रीटमेंट है, अपने दर्शक ऑडियंस है, अपने आयु वर्ग है, अपने पढ़ने देखने वाले लोग हैं, साक्षरता के लेवल पे सबका स्वीकारिता अस्वीकारिता है, पॉपुलैरिटी है, ट्रीटमेंट अलग अलग है, बजट अलग अलग है, बावजूद इसके उनको सिर्फ मीडियम दिखता है। अगर ऐसा हो तो भाई कोई चैनल खड़ा कर दे, उसी को लोग देखें, अखबार खाली दे दे, अखबार कोई देखे। तो ये इनकी कुछ बुराइयां हैं जो इन्होंने निकाली। आगे जो और ज़्यादा क्रिटिक है उस पर हम नेक्स्ट प्रेजेंटेशन में बात करेंगे। तो आज के लिए बस